students, welcome to Dia Educate. Smart mind, smart solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर and we focus on clearing your concept. We do not believe in ratification and हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. We always make you learn by understanding. So what we do is हम अपने chapters को segregate करेंगे और for each concept हम क्या provide करेंगे, questions जितने भी हमसे possible हो सकेंगे. So we do quizzes, questionnaires, discussions, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अनअकैडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. So students, we have discussed the theory part of the class 9 science chapter atoms and molecules in the previous video. So let's start the question bank for the topics we have discussed in the previous video. The topics were the laws of chemical combination. Second topic we have done was atom, atomic mass, and atomic symbols. So these were the topics we have done. Let's start with the question answers for these topics. The first question we have is, a sample of pure water, irrespective of its source, contains 11.1% hydrogen and 88.9% oxygen. The data supports the law of constant proportion, the law of conservation of mass, law of reciprocal proportions और law of multiple proportions. हमें given है एक sample है pure water का. हम उसका सोर्स नहीं देखेंगे जिससे वो बना है, बट इट कंटेन्स कितना परसेंट हाइड्रोजन, 11.1% हाइड्रोजन है उसके अंदर और 88.9% क्या है, ऑक्सीजन है. तो इसका मतलब इसमें डिपेंड नहीं करता कि वो किस सोर्स से आया है. सो दिस वाज अंडर द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन that states that in a chemical substances the elements are always present in the definite proportions by mass. The elements in a chemical substance
substance are always present in a definite proportion by mass. तो इस लॉ के अंडर आता है ये वाली चीज कि जितना मर्जी सोर्स हो, जैसा मर्जी सोर्स हो, प्योर वाटर के अंदर 11.1% हाइड्रोजन है और 88.9% ऑक्सीजन है. सो दिस इज अंडर law of constant proportion. So moving on to the next question. Next question we have is identify the correct statements in a compound such as water. The ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 8:1. If we see that the mass in water we have H2O. अब हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 का हो जाएगा 2. ऑक्सीजन का मास होता है 16. तो इट इज 1:8 and not 8:1. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हुआ. नेक्स्ट क्या गिवन है, अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज होता है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड. दिस इज अंडर द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर 1:8 हमारा हमेशा क्या रहता है, वाटर का रेशियो रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, राइट. तो अगर मेरा 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज होगा तो रेशियो क्या होगा ऑफ द मास, वो भी 1:8 ही रहेगा, राइट. तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही होगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Third statement we have given us in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 31:4 by mass. The mass of nitrogen is 14 grams and that of the mass for hydrogen is 1 gram. So in ammonia we have NH3. The ratio should be 14:3 for the nitrogen and hydrogen, not 31/4. So this statement is incorrect. Next statement we have given, many compounds are composed of 2 or more elements of and each such compound has the same elements in the same proportion. This is again the law of constant proportions definition की कुछ कंपाउंड्स, ज्यादातर कंपाउंड्स क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बनते हैं और हर कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट का एक प्रोपोर्शन होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. सो द ऑप्शंस वी हैव इज 1 and 3, 1 and 3 no, 1, 2 and 3 no, 2 and 4 yeah, 2 and 4 statements were correct. So the option C is correct for this given. Next question is, all samples of carbon dioxide contain carbon and oxygen in the mass ratio 3:8. This is in agreement with the law of conservation of mass, constant proportions, multiple proportions or gaseous volume. So let's see carbon dioxide में क्या होता है. मास रेशियो बताना है. कार्बन का मास होता है 12 एंड ऑक्सीजन का 16. 2 ऑक्सीजन हो जाएगा तो कितना होगा 32. So it is 2, 6, 12, 2, 1, 16, it is 8, it is 3, right? It is 3:8 by mass. It is 3:8 by mass. So it is law of constant proportions again, that in any compound what we have is the elements are always in the constant proportions or the definite proportions by mass. So the answer is B part we have. The next we have is the chemical equation is always balanced to fulfill the condition of Dalton's atomic theory, law of constant composition, law of multiple proportions or law of conservation of mass. So option D is correct because the law of conservation of mass states that the equation must be balanced because the total mass of product must be equal to the total mass of reactants. Their mass must be equal. It states that mass can neither be created nor be destroyed.
mass is always conserved, so a chemical equation is always balanced under the law of conservation of mass. So option D was correct. Next question we have is Latin name for gold is. गोल्ड का सिंबल होता है AU और इसका लैटिन नेम होता है ऑरम, AURUM। इसका इस लैटिन नेम से ही सिंबल डोनेट हुआ था, दैट इज इसका A और इसका U लेकर हमने इसको बनाया था AU। तो गोल्ड का लैटिन नेम क्या है? ऑरम। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज the chemical symbol for the nitrogen gas. Nitrogen gas exists as N2, that is a diatomic molecule. So the symbol for the nitrogen gas is N2. Ni is nickel. N positive is the nitrogen who has lost in the one electron. This we will discuss in the next theory lecture. And none of these. So we have the B part correct. Next question we have is the chemical symbol for the sodium is N and small a, that is option D is correct. This option is also showing N and A, but according to the IUPAC nomenclature, the first letter should be in the capitals and the second one should be in the lower value. So it is capital N, small a for sodium. The next we have is name the two laws of chemical combination. The two laws of chemical combinations are, the first one we have done is law of conservation of mass. हमने कौन सा लॉ किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. The second law we have done is law of constant proportions. Law of constant proportions or law of definite proportion also we can say, which states that the element in a substance is always present in a definite proportion or the constant proportion by mass. The next we have is name the scientists whose experimentation established laws of chemical combination. किन scientists ने हमें laws of chemical combination दिए थे? ऐसे दो scientists थे हमारे पास जिनका नाम था, first one we have is Antoine, ANTOINE, Antoine Laurent Lavoisier. तो पहला साइंटिस्ट तो ये था एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर। दूसरे साइंटिस्ट थे जोसेफ एल Proust. So these were the two scientists who established the laws of chemical combination. The next question we have is name the two laws of chemical combination established by the Antoine Laurent Lavoisier and Joseph L. Proust. So this was the same question we have done in the previous. So the two laws of combinations are, first one is law of conservation of mass, and the second one we have is law of definite or constant proportions. यही किया था हमने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था सेकंड लास्ट इससे पहले कि पहले दो लॉज बताओ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर वो दो लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन के किसने दिए, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने दिए थे, उसका आंसर ये हो गया था। एंड अब इन दोनों साइंटिस्ट ने कौन से लॉज दिए थे, तो these three questions were interlinked with each other. किसी भी तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है। So the next question is name the symbol of the element molybdenum. molybdenum की जो हम नेमिंग करते हैं उसके लिए इसके पहले दो लेटर्स लेंगे और अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखते हैं और दूसरा लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। सो molybdenum is represented as capital M and small O. So this is the answer for this.
question. Next question we have is, name the element which is used as the reference for the atomic mass. Atomic mass find out करने के लिए हम क्या करते थे, हम एक एटम को या एक एलिमेंट का हम ना रेफरेंस लेते थे, because it is not easy to find out the exact molecular mass or atomic mass. What we find out is, we find the relative atomic mass. हम relative atomic mass निकालते थे, because एग्जैक्ट एटॉमिक मास अगर हमें किसी का निकालना हो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम रिलेट करते थे किसी से. तो वो कौन सा एटम है जिससे रिलेट करते हैं? द कार्बन इज द एटम जिससे हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं. सो द एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर द एटॉमिक मास इज कार्बन, राइट. The next question is, name the latest short form of atomic mass unit. पहले हम atomic mass unit को AMU से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म आजकल जो हम यूज करते हैं वो डायरेक्ट हम स्मॉल यू से करते हैं. सो लेटेस्ट atomic mass units short form is small u. It is represented as small u. The next question is, write the Latin name for silver. सिल्वर का सिंबल होता है Ag, जो कि लैटिन नेम से इसके आया है, जिसका नाम है, लैटिन नेम ऑफ द सिल्वर इज Argentum, right? Argentum is the Latin name for silver. The next question we have is, the postulates of Dalton's atomic theory. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction is the result of law of conservation of mass. उसका जो ये postulate था कि जिसमें एटम्स जो है इंडिविजिबल पार्टिकल्स है ना, उनको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट था. और उसका जो पॉस्टुलेट था कि रिलेटिव नंबर और काइंड्स जो होते हैं एटम्स के वो फिक्स होते हैं, वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से आया था या फिर उसको एक्सप्लेन करता था. तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, एटम इज नॉट द अल्टीमेट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर. एटम आर डिविजिबल, दैट इज दे आर देमसेल्फ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स. मतलब क्या है, पहले तो नहीं पता था ये प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर. पहले क्या डिस्कवरी थी कि एटम्स जो है इंडिविजिबल हैं. लेकिन अब जो थ्योरी आई है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बताते हैं कि एटम्स जो है दे कैन बी डिवाइडेड, और उनको हम किन चीजों से बनता है, वो प्रोटॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है, न्यूट्रॉन से बनता है, एक्सेट्रा. Assumption that the atoms of the same elements have the same mass does not hold good. कि जिस elements का अगर किसी atoms का element same है तो उनका mass भी same होगा. It does not hold good in case of the isotope of an element. Isotope क्यों हो जाता है? Element having the same atomic number, different mass number. तो इसका मतलब ये जो assumption थी कि atoms of the same element have the same mass, वो आइसोटोप्स के केसेस के लिए क्या हो जाती है, अप्लाई नहीं होती है. सो एवरी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. और भी चीजें गिवन है कि एटम्स जो है गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं, बोथ इन मास एंड प्रॉपर्टीज. डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होंगे. इन पर्टिकुलर एटम्स का डिफरेंट मास होता है. Atoms cannot be created, destroyed or transformed into atoms of other elements. एक एटम से हम दूसरा एलिमेंट तोड़ के नहीं बना सकते. ऐसा नहीं है कि सोडियम अगर है हमारा, उससे मैं तोड़ के मैं कैल्शियम बना दूं, या कैल्शियम को तोड़ के मैं मैग्नीशियम बना दूं, या मैं सोडियम से बना दूं कार्बन, है ना. ये चीजें नहीं हो सकती हैं. So compounds are formed when atoms of the different elements combine with each other in a small whole number ratio. The relative number and the kinds of atoms in a given compound are constant. तो ये हमें पूरा एक पैराग्राफ गिवन था. अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना है, अब एक्सप्लेन करने हैं जो क्वेश्चंस हमें 3 नीचे गिवन है उनके आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass. law of conservation of mass को कौन सा postulate बताता है Dalton's theory का? तो for this we have the first question's answer is the postulate of the atomic theory, that is atoms कैसे होते हैं, indivisible होते हैं, indivisible होंगे.
These are the indivisible particles which can not be created or destroyed in chemical reaction or destroyed in a chemical reaction. Right? This is the result for the law of conservation of mass. This was the first question in this paragraph. Second question is, which postulate of the Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions? Law of definite proportions को कौन सा postulate हमारा बताता है, जो कि इस पैराग्राफ में सेकेंड लाइन गिवन थी, that is कि relative number and kinds of atoms, these are fixed in a given compound. That is, this explains the law of definite proportions. The third question from the paragraph is, give two drawbacks of the Dalton's atomic theory. अब Dalton's atomic theory क्या कहते हैं, मास ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं ना, ये सारी चीजें. और क्या कहती है कि अभी जो हमने किया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन करती है. लेकिन अभी इसी पैराग्राफ में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ये इंडिविजिबल होते हैं अगर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स देखें. लेकिन एटम्स जब बाद में मॉडर्न थ्योरी आई उससे पता चला एटम्स कैसे थे, दीज आर दी डिवाइजिबल पार्टिकल्स. तो फर्स्ट इसका ड्रॉबैक है, एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स. अकॉर्डिंग टू ये तो कहता था कि एटम्स जो थे indivisible थे. तो atoms are divisible, that is they are made up from the protons, electrons and neutrons. ये मॉडर्न थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया. सेकेंड क्या दे रखा था कि assumption थी mass can neither be created nor be destroyed, और ये भी दे रखा था कि एटम्स का अगर एटम सेम एलिमेंट का होगा तो उसका जो मास होगा सेम ही रहेगा. लेकिन आइसोटोप्स के केस में ये चीज वैलिड नहीं होती. तो हम आइसोटोप्स के केस में अगर ये चीज वैलिड नहीं है तो सेकेंड ड्रॉबैक क्या आ गया इसका, सेकेंड ड्रॉबैक है वो कहता है कि जो एटम्स हैं of the same element can have different mass atoms. Second drawback of the third question is, atoms of the same element can have different mass. राइट कैसे, जैसे एग्जांपल ले लेते, फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. कार्बन का एक आइसोटोप का मास 12 होता है और एक का होता है 13. राइट, तो इसका मतलब कार्बन है तो क्या सेम एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्या चीज सेम नहीं है, इनका मास सेम नहीं है. सो दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ. दिस वाज आल्सो द ड्रॉबैक फॉर द Dalton's atomic theory. The next question is assertion reason, in which we have to do is we have to find which statement is correct, or either the assertion is the correct The next question we have is assertion reason. अब reason क्या इस assertion के लिए सही है या फिर assertion अकेला खुद भी सही है या नहीं, ये चीजें हम देखेंगे. फर्स्ट क्या गिवन है, जब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो 5.6 ग्राम ऑफ रेजिड्यू इज लेफ्ट और 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स. राइट, अब इसमें क्या दे रखा है, इसका रीजन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो हुआ है. राइट, तो हम क्या देख रहे हैं, 10 ग्राम था हमारे पास, वो टूटकर 5.6 ग्राम प्लस 4.4 ग्राम्स में बना. राइट, तो 5.6 प्लस 4.4 होता है 10 ग्राम्स. राइट, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो हुआ ही है. सो बोथ assertion and reason are true. बोथ
assertion and reason, these are true, and R is correct explanation for the A. That is, reason is correct explanation for the assertion A. So the next question is, one atomic mass unit is the mass of an atom, exactly 1/12 the mass of the carbon 12 atom. C12 isotope was selected as standard. ये हमें दे रखा है. अब देखो, हम जब निकालते थे एटॉमिक मास तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते थे. रिलेटिव एटॉमिक मास निकलता था. अब जब रिलेटिव एटॉमिक मास निकलता था तो रिलेट किससे करते थे? रिलेट करते थे कार्बन के 12th आइसोटोप से, जिसका एटॉमिक मास कितना हो 12. C12 आइसोटोप से हम क्या करते थे? इसको रिलेट करते थे. तो ये चीज सही लिखिए कि जो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है, it is equals to the mass of an atom which is 1/12 of the mass of the C12. So the assertion is also correct. Assertion correct. Reason is again correct for this because कार्बन को ही स्टैंडर्ड लेकर चले थे हम. And R is correct for A. That is, reason is correct for the assertion we have given. The next question is, atomic mass of aluminium is 27. Aluminium का atomic mass कितना है? 27. Atomic number is 13. An atom of aluminium is 27 times heavier than the 1/12 of the mass of the carbon 12 atom. क्या ये चीज सही है? हाँ जी, दोनों चीजें सही है because atomic mass aluminium का 27 ही होता है, और जो हमारा एक एटॉमिक मास, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया, जो वन एटॉमिक मास यूनिट होती है वो 1/12 और C12 के इक्वल है. तो 27 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगी? 27 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन 12 एटम. राइट. सो द assertion is again correct. The reason is again correct, and reason is correct for the assertion. तो ये चीजें दोनों सही है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही रीजन दे रहा है. द नेक्स्ट इज, assertion given है, वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है 1.6 into 10⁻⁻24 grams. बिल्कुल सही है. अब रीजन क्या दे रहे हैं कि 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम जो होता है ये इक्वल होता है 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम. अब ये जो चीज है इसका ये रीजन नहीं है. असर्शन भी ठीक है, assertion is also correct, reason is also true, assertion is true, reason is also true, but अब इसका मास इतना होता है, ये चीज ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना. सो द रीजन इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन assertion. इस assertion का रीजन कुछ और होगा. इस assertion का रीजन होगा कि जो हमारा वन एटॉमिक मास यूनिट इसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब एक एटम के अंदर जो एवोगैड्रोस नंबर है 1.6 into 10⁻⁻24 कितने प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये उस चीज से ये आया है कि इतना ग्राम होगा. राइट. इसका रीजन ये नहीं है कि ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम का है. तो दोनों चीजें करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इस वीडियो में हमने बहुत बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन कर ही लिया है, तो आई होप अब तक तो पूरा याद हो ही चुका होगा दैट मास कैन neither be created nor be destroyed. Right? Mass can neither be created nor be destroyed. The total mass of product
is always equals to the total mass of reactants. Total mass of the reactants in a chemical reaction. अगर जैसे A plus B give rise to C plus D, तो मास जो होगा A plus B का, वो मास किसके इक्वल होगा? C और D के मास के इक्वल होगा. So this defines the law of conservation of mass. Next question is define law of constant proportions. तो इससे भी हम बहुत बार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होता है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि किसी भी प्योर केमिकल सब्सटेंसेस में इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे, द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in a definite or constant proportions, right? कोई भी प्योर केमिकल सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होंगे. दिस लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज distinguish between the molecular mass and the molar mass. अब molecular mass और molar mass में फर्क क्या होता है? दोनों है तो मास ही, एक है molecular, एक है molar. नाम से क्या फर्क आता है? नाम से ही पता चलेगा. एक मास होगा किसका? एक मॉलिक्यूल का, और दूसरा किसका होगा? एक मोल का. Let's see what is the difference between the molecular mass and the molar mass. So molecular mass of substance, molecular mass is the sum of atomic masses of all atoms in a molecule. Sum of all atoms in a molecule. और अगर मोलर मास की बात करें तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास it is the mass of 1 mole of any substance, अब दोनों के डेफिनेशंस में क्या फर्क आया? जैसे कि अगर मैंने वाटर लिया तो वाटर का मास कितना होता है? 18 टोटल. अगर देखें तो वो इसका मॉलिक्यूलर मास है. लेकिन अगर बात करें मास, मोलर मास की, तो वो क्या होगा? अगर मैंने कोई सब्सटेंस 1 मोल लिया है तो 1 मोल का मतलब क्या होगा? हमने उसका क्या लिया है? हमने उसका मोलर मास लिया है. 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है, दैट इज Na. एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स का जो मास होगा, दैट इज द मोलर mass. So this is the basic difference between both of them. The next question is, what is the full form of IUPAC? IUPAC होता क्या? IUPAC होता है एक ऐसी ब्रांच है जिसने क्या दिया है? नेमिंग दी है, कुछ रूल्स दिए हैं. अकॉर्डिंग टू दी IUPAC सिस्टम हम क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं किसकी? कंपाउंड्स की, या फिर किसी एटम की, या किसी भी एलिमेंट की, राइट? तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इट इज द इंटरनेशनल union. I stand for international, U stands for union, P stands for pure, A stands for pure, and A stands for applied, C stands for chemistry. So it is the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Next question is, what is the measuring unit of atomic radius? अब एटम इतना छोटा होता है, हम उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में हम नहीं उसको मेजर कर सकते. So the measuring unit for the atomic radius is nanometer. Nanometer is represented as small n, small m. 1 meter can be converted into the nanometer by dividing it by 10 raised to power minus 9. Right?
So 1 nanometer is equals to 10 raised to power minus 9 meters. So this is the measuring unit for the atomic radius. Next is, why is it not possible to see an atom with naked eyes? हम atom को अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते? एटम को आंखों से नहीं देख सकते, मतलब क्या कि एटम इतना छोटा होगा कि उसको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते. एटम इज सो वेरी मच टाइनी इन साइज कि क्या होगा अगर मिलियंस ऑफ एटम्स ही मिल जाए ना, मिलियंस ऑफ एटम्स मिलकर भी ना सिर्फ इतनी थिकनेस देंगे कि जितनी थिकनेस एक शीट ऑफ पेपर की होगी, तो इतना छोटी चीज को हम नहीं देख सकते विद आवर नेकेड आईज. उसके लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है. तो पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही हम एटम की मैग्नीफाइड इमेजेस देख पाएंगे, अदरवाइज हम एटम को नहीं देख सकते हैं, राइट? Because the size of atom is so small that it is not possible to see it with the naked eyes. और atoms जो हैं अपने इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इतने छोटे होते हैं, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इतनी नहीं होती है. सो जैसे कि हमने बताया मिलियंस ऑफ एटम्स मिलके एक, जैसे ये लाइन है, इसकी थिकनेस कितनी कम है, एक शीट जो होती है इसकी थिकनेस उससे भी कम होती है, राइट? तो मिलियंस ऑफ एटम मिलके इतनी थिकनेस भी नहीं बना सकते, तो एटम का साइज कितना छोटा होगा, वी कैन इमेजिन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the building block of all the matters? building block of all the matters का मतलब क्या होता है कि किसने मैटर को बिल्ड किया है, मतलब बनाया है. तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स इज एटम्स. एटम्स आर कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स. जैसे बिल्डिंग एक बनती है तो ब्रिक्स मिल के एक पूरी बिल्डिंग खड़ा करती हैं, तो ऐसे ही जब एटम्स होंगे ये भी क्या करते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरा मैटर बनाते हैं. ये तो फिर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा मैंने साइज दिखा दिया है, बिकॉज अब इतना स्मॉल साइज तो मैं दिखाने से रही है ना. तो ऐसे ही बिल्डिंग जैसे ब्रिक्स से बनती है, ऐसी मैटर हमारा एटम्स से बनता है. दीज आर दी एटम्स which have made a matter, right? Next question is, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 3 gram of carbon is burnt with 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. It is 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed if 3 gram of carbon in 50 gram of oxygen is burnt? 50 gram of oxygen is burnt. So the mass of the carbon dioxide will be what? Next is, which law of chemical combination will govern your answer? अब देखो 3 plus 8 कितना है 11, और यहाँ पे 3 plus 50 आ जाएगा 53. अब ये चीजें कैसे आ रही हैं, लेट्स सी. अब जो हमारा ये पूछ रहा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इससे हिंट मिल जाएगा कि जो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है, वो हमें बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये क्या करता है हमारा, तो जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन लिया था तो वो सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है और 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, राइट? तो हमारा जो लॉ इसमें फॉलो होता है वो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है दे बाय मास 3:8 में ही रहेंगे. तो जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं तो सिर्फ वो 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा, चाहे मैं उसको 50 ग्राम ही क्यों ना ले लूं, वो क्या रहेगा, वो फिर भी 3 ग्राम ही है ना, क्योंकि कार्बन तो वो तो सिर्फ 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट करेगा, सॉरी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, ताकि 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो. तो बाकी का बचा हुआ, जैसे 8 ग्राम अगर इसमें से 8 माइनस कर दो तो 50 माइनस 8 दैट इज 42. तो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, तो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये अनरिएक्टिव रह जाएगी, दैट it will remain
Reactive, because according to the law of constant proportion, the element combine in the definite proportion by mass. तो अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर सकता है, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में से सिर्फ 8 ग्राम ही ऑक्सीजन लेकर 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा, बाकी का ऑक्सीजन अनरिएक्टिव रह जाएगा. So this is the answer. Next question is, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? जो अभी हमने ऊपर किया law of definite proportion, ये डाल्टन्स की कौन सी एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है? तो डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट था कि जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं, रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ atoms, these are fixed in a given compound. Fixed in a given compound, right? They can explain the law of definite proportion. The next question is, define atomic mass unit. Atomic mass unit क्या होता है? The atomic mass unit, AMU, it is exactly equals to the 1/12 of the mass of carbon 12 atom. कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसका एग्जैक्टली अगर मैं 12 से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे क्या देगा? एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा, राइट? सो दिस इज एटॉमिक मास यूनिट. नाउ इट इज रिटन एज द स्मॉल u. The next question is, we have hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 by mass to form water. Water is H2O. Hydrogen is present 2 times and the mass of hydrogen is 1 and oxygen mass is 16. So it is 2:16, that is 1:8 in the simplest form. So it is given, it is present in the 1:8 by mass. What mass of oxygen would be required to react completely with the 3 gram of hydrogen gas? अगर hydrogen gas 3 gram हो जाएगी तो ऑक्सीजन का मास कितना रिक्वायर्ड होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट मीन्स 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 24 ग्राम ऑफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? सो फॉर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस वी नीड 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन gas to react completely, because हमें क्या चाहिए? डेफिनेट रेशियो चाहिए. अब इनकी भी सिंपलर फॉर्म टूट के 1:8 ही देती है. दिस इज अंडर द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की एलिमेंट्स हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शंस में ही रहेंगे, किसी भी सोर्स से वो आए हों. तो हमें क्या करना है? हमें इसकी डेफिनेट प्रोपोर्शन को नहीं छेड़ना है, इसकी कांस्टेंट ही रहेगी प्रोपोर्शन. तो 3:24 में भी इसकी तो रेशियो 1:8 ही रहेगी. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि जो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है उसके लिए मुझे 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. With this, we have come to an end of this video. So I hope you like it. So if you like this video, hit the like button, share the video with your friends, and don't forget to subscribe our channel if you haven't subscribed till yet, and hit the bell icon for the further notifications. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook. So me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video with the new session. Till then, take care. Bye-bye.